we have, you all have studied three-dimensional geometry also in classes 11 and 12, है ना, करी है ना? Yes, Yes. ma'am. तो Yes, अब ma'am. 3 dimension जो तुमने एस्पेक्ट पढ़ा, जिसको हमने सॉलिड्स बोला था, ठीक है ना, सॉलिड्स ही बोला था ना तब, तो उसमें जो हम लोगों ने पढ़ा वो 3 dimensional सॉलिड एज अ सॉलिड ही पढ़ा है. like we have seen what the equation of a sphere would look like. We have seen how does a cylinder look like, right? But then the thing is that in order to study 3 dimensional solids, we have two options. When we talk of 3 dimensional solids, obviously what we talk, see, when we started with integration, if you remember, then we all started with, I mean, not just integration, go back to that chapter of definite integrals that you did in your class 12. So if you remember, it must have been, introduced in the beginning that if you have a curve, say y equal to fx is any curve, okay, and say supposing it is bounded by the lines x equal to a and x equal to b, okay, and we are interested in finding the area under this curve bounded by the lines x equal to a, x equal to b on these two sides, the x-axis and the curve on these two sides, right? Then if you remember your chapter on integration, what do? We split it into small rectangles, right? So small that the width of each rectangle is dx. यही करते हैं ना, ठीक है? And dx is a very small quantity. Now, we use the concept that area of a rectangle is given by nothing into length into its width, okay? Now, length is changing at every stage, in the sense that at this stage, the length is going to be governed by this line. At this point, the length is going to be governed by this line. And how are these points behaving? The way this function is behaving, that means length of every rectangle is fx and width of every rectangle is dx, right? So what do? We construct such small rectangles, we compute their areas. This is how integration was defined, right? We compute their areas, and then what do? You sum the areas of all rectangles, and that becomes the area under this curve. Now, but then when we talk of sum or summations, you must have seen there are two things. एक हम इस notation से denote करते हैं summation को, right? Now, when we talk of this kind of a summation, then you have to have, like, say, supposing I'm talking of, इसको इसी तरह से करा था ना, I think, f(i)x into delta xi, something like this, where I varies from 1 to some, I mean, whatever the number of rectangles that we have. It's not a proper notation that I'm writing. I'm just giving you a rough idea, okay? So basically what it means is that this kind of a summation we call as discrete summation. Discrete, why? Because we are picking up objects and then we are taking the sum total of them. But when we look at this, I mean, this whole is a continuous region, in the sense that there is no gap. If I have this rectangle, then between the subsequent rectangle, there is no gap, right? So that is why when we take the width, we take it so small that this is almost zero. Okay, so that is why your NCERT books say that this summation gets converted to integral, and you find this integral from x equal to a to x equal to b. That is why integration at times is also called as continuous summation. Okay, this is the basic difference between this symbol and integral. They're doing the same job. They're adding up things. But when we talk of this kind of a summation, you are picking up discrete objects and adding them. Whereas in this case, you are trying to add something which is continuous in nature. And that is why the definite integrals help us in finding the area bounded by these curves. Area bounded by the curve
and the bounds of x equal to a and x equal to b. I mean, all this you are familiar with. You have studied it in your class 12, right? Now, the moment we have a curve, we can talk of the area covered. Okay. Now, the moment this becomes solid, then what is the corresponding term that we can evaluate? Area क्या बन जाएगा 3-dimensional में? Volume. The area gets converted to volume, because area का मतलब क्या है? Space covered. इसी को एक लेमैन की टर्म में तो यही करेंगे ना. I mean, out of this whole xy plane, how much is the space covered? How much of is this coordinate plane covered by the curve and the lines x equal to a, x equal to b, and the x-axis? इसी को ही बोलेंगे ना. यही अगर you have also studied area between two curves, मतलब ऊपर भी एक curve है, नीचे भी एक curve है, उसके बीच में x equal to a and x equal to b, and somewhere here is my coordinate plane. We can find the areas under this region also. You've all learned that, right? Now, the moment you move from curve to solid, the easiest example is curve क्या है? Circle. Solid में वो क्या बन गया? Sphere. Sphere. ठीक है ना? तो जो circle का area है, that gets converted to sphere का क्या? Volume. Okay. So that means when we are saying space occupied, जब area है तो हम उसको paint कर सकते हैं, right? जब volume है तो हम उसको fill कर सकते हैं. This is the difference between 2-dimensional and 3-dimensional things. इसको याद तो ऐसे ही रखते हैं ना. एरिया का मतलब क्या है कि मेरे पास एक रीजन है जिसको मैं किसी भी कलर से फिल कर सकती हूँ. But I can fill it like this only. But when you have a volume, it's like you have a bag. So you can fill objects in it. That's why it becomes the volume, the amount that it can hold. That is what we talk of, right? So that means if in 2 dimensions, we talk of areas using integration, that means in 3 dimensions, we can find volumes using integrations. कर सकते हैं, ठीक है ना? अब the point is कि अब इस solid को भी study करने के, as I'm saying, there are 2 different ways. कैसे? Say supposing sphere है. देखो, अगर अब sphere भी draw तो ऐसे ही होगा, ठीक है? Supposing this is some sphere of radius a, whatever you want to do, and center anything. I'm not going into those details, right? अब हम क्या करते हैं when we try to find the volume? So it's like you have a solid something round. कुछ भी imagine कर लो. क्या imagine करोगे? जिसको हम ball. Okay. Supposing you have a ball. Okay, a soft ball, right? You want to study the volume. How much can it hold? So what we do is, अब जैसे हमने एरिया निकालने के लिए उस कर्व को हमने क्या किया था? रेक्टेंगल्स में स्प्लिट किया था. क्यों? क्योंकि हमारे पास एक ऑलरेडी प्लेन में कर्व रीजन था, ठीक है? तो उसको हमने किससे स्प्लिट किया था? स्ट्रेट लाइन से, राइट? अब हमारे पास क्या है? एक 3-dimensional स्पेस में एक सॉलिड है, एक बॉल है हमारे हाथ में. अब अगर हम इसको स्प्लिट करना है तो ऑब्वियसली इसको प्लेन से ही कट करेंगे ना. प्लेनर इनके सेक्शंस लेंगे. पहले एक प्लेन से कट किया, ठीक है? तो हमारे पास ऊपर के रीजन में क्या आ जाएगा? एक सर्कल, ठीक है? फिर ये दूसरा सर्कल. तो इस तरह से क्या आ जाएगा हमारे पास? अगर हम इसको इसी से रिलेट करने की कोशिश करें कि जैसे इसमें हमने अपने रीजन को स्प्लिट किया था, इसमें भी हम अगर अपने रीजन को स्प्लिट कर रहे हैं, तो जैसे इसमें हमारे पास रेक्टेंगल्स आए थे, इसमें हमारे पास क्या आएंगे? सर्कल्स. ठीक है? अब अगर हम हर सर्कल का एरिया निकालते रहे और उन सब एरियाज को ऐड कर दें, भाई एक सर्कल कितना रीजन होल्ड कर सकता है? वो उस सर्कल का एरिया होगा. क्यों एरिया होगा? क्यों? क्योंकि सर्कल तो 2-dimensional कर्व है, राइट? तो अगर हम हर सर्कल का एरिया निकालते रहें और फिर उन एरियाज को ऐड कर दें, तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा. वही बात रही. बट ऐड कैसे करेंगे? अगेन इंटेग्रल, ठीक है? बट क्योंकि हम एरिया निकाल रहे हैं तो इट विल बी सम फंक्शन ऑफ एक्स, जिसको अब ये एरिया ये सर्कल का है, बट ये सर्कल क्या है? दिस सर्कल इज नथिंग बट क्रॉस सेक्शन. एक सेक्शन ही तो है स्फीयर का. सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज अ क्रॉस सेक्शन.
अब क्रॉस सेक्शन किसका? ऑब्वियसली स्फीयर का. सो इसका मतलब क्या होगा? फर्स्ट क्रॉस सेक्शन का कुछ एरिया होगा क्योंकि रेडियस चेंज करेगा, सेकंड क्रॉस सेक्शन का कुछ और एरिया होगा, थर्ड क्रॉस सेक्शन का कुछ और एरिया होगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ. अब जैसे मैंने ये लिया था, अब क्रॉस सेक्शन, ये मेरा स्फीयर है तो मैं क्रॉस सेक्शन ऐसे भी तो ले सकती थी, इस तरह से. ठीक है, सो ये मेरी एक्स वाई प्लेन थे. सो दैट मीन्स दैट डिपेंड्स अपॉन मी कि मैं क्रॉस सेक्शन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस ले रही हूँ या क्रॉस सेक्शन परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस ले रही हूँ. बट I am taking a cross-sectional areas and then adding them from whatever limit my x is varying. So supposing it could be varying from -a to a. अगर radius मेरा a है and center 0, 0 है. So what I have to do is just integrate from -a to a. So that means what we are doing is, but इस केस में हमने क्रॉस सेक्शन क्या लिया? परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस. इस केस में अगर हम क्रॉस सेक्शन परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस ले रहे हैं तो हमारे को लिमिट्स कहां से किसकी लेनी पड़ेंगी? y की. से y इक्वल टू c टू y इक्वल टू d. एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया भी किस टर्म्स में आएगा? इंस्टेड ऑफ ax I'll have ay dy. So I'll have this integral which will give me the volumes. Okay. Now अब यही चीज हम, जैसे अगर हम सिलेंडर की बात करें तो सिलेंडर में सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे निकालते हो? व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर? pi r square पाई आर स्क्वायर h एच. ठीक है, राइट. नाउ व्हिच एच इज द हाइट. अब हाइट का मतलब, अब सिलेंडर बना कैसे? ये पाई आर स्क्वायर क्या है? व्हाट डू यू फाइंड? एरिया का एरिया, एरिया ऑफ द बेस जिसको बोलते हो. एंड दिस इज right, this is actually a circular cylinder. ठीक है ना. सर्कुलर सिलेंडर का मतलब क्या? वो सिलेंडर जिसका बेस सर्कल है. यही करते हैं ना हम. ये सर्कल है जिसका रेडियस r है. इस सर्कल का एरिया तुमने निकाला पाई आर स्क्वायर. ठीक है. अब इमेजिन लाइक यू हैव सम some ring placed on some plane. Okay, that becomes your circle whose area is pi r square. Now you just pull it up. So that becomes a cylinder. ठीक है. अब उसको कितना पुल करोगे? ऑब्वियसली जितनी उसकी हाइट है. तभी तो हम इसका सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच बोलते हैं. ठीक है. अब अगर देखा जाए तो अगर मेरे पास यही एक सिलेंडर मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है, अगर मैं इसके क्रॉस सेक्शनल एरियाज लेती जाऊं, ठीक है, सो दिस एच विल एक्चुअली बी व्हाट? द लिमिट्स. कि हम यहां से यहां तक इसका वॉल्यूम निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो हम इसका भी इंटीग्रल के टर्म्स में निकाल सकते हैं. You take up any solid and we can do that, right? So basically the objective of, the logic that we are using in finding the volumes by using the process of integration is we are finding cross-sectional areas. Okay, that depends. Cross-sectional area हम कैसे ले रहे हैं? It's like you are just slicing your solid. ठीक है. अब जैसे अब आइसक्रीम का ब्रिक है. ठीक है. अब आइसक्रीम का ब्रिक तो एक क्यूबॉइड है हमारे पास. ठीक है ना. या उसको कहते हैं, जब हम उसके पीसेस करते हैं, राइट, तो पीसेस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? स्लाइस आता है. अब स्लाइस का विड्थ वेरी कर सकता है. अब वो स्लाइस अपने में भी एक प्योर रेक्टेंगल नहीं है. क्यों? क्योंकि उसका चाहे तुम जितना पतले से पतला काट लो, उसकी फिर भी एक विड्थ होगी. तो एक स्लाइस भी अपने में एक 3 डायमेंशनल सॉलिड हो जाता है. बट जैसे हमने इस केस में किया था कि हमने अपने रेक्टेंगल की विड्थ को इतना छोटा ले लिया था कि वो dx बन गया, इसी तरह से हम इसमें भी जो हम अपने सॉलिड के स्लाइसेस बना रहे हैं उसकी विड्थ को इतना छोटा ले लेंगे कि वो dx बन गया. और फिर अब मैंने अपनी आइसक्रीम की स्लाइस को ऐसे भी काट सकती हूँ और मैं ऐसे भी काट सकती हूँ. So if I am cutting like this, that means I am using my knife. Your knife is now your plane with which you are cutting it. Okay, so your knife is now perpendicular to the x-axis, right? So you are making your slices which are perpendicular to x-axis. तो अब कहां से कहां तक शुरू करोगे? जो तुम्हारे x-axis पे तुमने beginning point लिया और x-axis पे end point लिया. ठीक है. तो यहां से यहां तक के हमारे पास जितने स्लाइसेस आएंगे, हम हर स्लाइस के एरिया
एक तरह से हर स्लाइस के वॉल्यूम को ऐड कर रहे हैं, एरिया को ऐड कर रहे हैं, तो ये एक तरह से यही बन रहा है ना, ax dx वेयर x वेरीज फ्रॉम a टू b। यही स्लाइस अगर तुम परपेंडिकुलर टू y एक्सिस करोगे, तो जब तुमने अपने आइसक्रीम के जो हमारे पास ब्रिक थी आइसक्रीम की, उसको हमने जहां रखा तो उसके बीच में कहीं y एक्सिस है ना, या कहां से, तो इसका मतलब जो उसका लोअर बेस है, दैट डिफाइंस योर y इक्वल टू समथिंग from which we are starting, and where it ends defines y equal to something where it is ending. So that means in that case your things are going to be governed by y equal to c and y equal to d. That's why when you find the cross-sectional area, it will again be in terms of y. So what I mean to convey here is that when you are slicing your solids, when you are splitting your solids, when you are cutting your solids, it could result in x or it could result in functions of y. So accordingly, we integrate and accordingly we take the limits, right? So we are this is going to give us the volumes, right? But then, as I was saying, we have another aspect, because अब इस केस में क्या हो गया, the thing is that okay, जो standard solids हैं उनका तो हमें पता भी है, we know sphere, we know cones, we know cylinders, इन सब का हमको वॉल्यूम का फॉर्मूला भी पता है और हमें पता भी है कि वो कैसे डिराइव किया गया है, right? But then the point is कि every solid is not so standard and every solid is not so symmetrical. Like I can have you ever seen चलो मैं एक चीज इमेजिन करने को बोलती हूँ. आई एम टेकिंग अ सिंपल कर्व, राइट? चलो हाँ यही लेते हैं, ये ऐसे ड्रॉ किया मैंने और इसको ऐसे बना दिया, ये दिस इज सम कर्व, ठीक है, कोई कर्व है, अभी मैं मतलब मुझे नहीं पता इसकी इक्वेशन क्या है, बट डेफिनेटली दिस इज सम कर्व इन द एक्स वाई प्लेन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है. अब इसको मैंने यहां से बाउंड कर दिया, यहां से बंद कर दिया, से x इक्वल टू a, और यहां पे मैंने लाइन ड्रॉ कर दी x इक्वल टू b, ठीक है. अब ये मेरे पास एक कर्व है, राइट? नाउ आई आस्क यू, इमेजिन नाउ दैट you are rotating this curve, right, about x axis. मतलब ये एक लाइन है, okay, and you are rotating it. Have you ever seen that toy? मतलब एक बीच में एक इलास्टिक होता था, ठीक है, उसके बीच में एक रिंग है कुछ छोटा सा, उसको हम ऐसे ऐसे घुमाते हैं, Yes, and then you just stretch it so it keeps on rotating itself and it gives you an illusion. है किसी ने? yes, ma'am. Yes, ma'am. खेले हो कभी उससे? Yes, Yes, ma'am. तो क्या क्या दिखता है और क्या होता है? जो खेला है इससे वो बताए ना, because this topic needs imaginations, so that's why I'm saying. मैम दो कोण एक साथ जुड़े रहते हैं बेस पे. जब तुम उसको घुमा के छोड़ देते हो, कौन तो नहीं देता वो, सर्कुलर टाइप के दिखते हैं. मैम कुछ शेप फॉर्म करने लगता है वो मूव करने से. मैम उसका मैम जो स्ट्रिंग होता है मैम वो टू एंड फ्रो की कंडीशन में होता रहता है बार बार. और मैम और यार मुझे इतनी फिजिक्स नहीं आती ना, मुझे अभी पढ़ाओ, जब मेरे को पढ़नी होगी मैं खुद पढ़ूंगी तुम्हारे साथ फिजिक्स, ठीक है? मैं सिंपल एक बच्चे की तरह से देख के बताओ मुझे कि जब तुमने उसको ऐसा से घुमाया और छोड़ दिया, जब छोड़ दिया तो वो स्ट्रिंग तुम्हारी एक्स एक्सिस बन गई. मैम वो कंटिन्यूअसली घूमते रहता है. घूमते रहता है तो एक इल्यूजन देता है ना. यस मैम. yes, जो वो एक्चुअली में शेप होती है, क्या वही शेप दिखती है घूमती हुई? नो मैम. No, ma'am. मैम ठीक है ना? तो क्या दिखता है? Circle. सर्कल तो एक्चुअली में है, sphere.
मैं वो ऐसा लगता है कि वो एक सर्किल घूम घूम के सिलेंडर से बनाता है, मतलब वो बड़ा हो जाता है। वो होती है पतली प्लेट लेकिन वो बड़ी लगती है। बड़ी लगती है, तो अगर हम उसको एक साथ जोड़ दें तो वो एक एक रिंग, एक बॉल सी नहीं दिखने लगेगी? यस मैम। यस मैम। सो बेसिकली क्या हो रहा है कि है तो एक तुम्हारे पास 2 डायमेंशनल कर्व, बट जैसे ही तुमने उसको रोटेशन दी तो वो एक 3 डायमेंशनल सॉलिड जनरेट होने लगता है। ये यस तो सर। 3 डायमेंशनल सॉलिड है, सर्कल एक कर्व है, 2 डायमेंशनल कर्व है। मैं बार बार ये दोनों चीजें बोल रही हूँ, 2 डायमेंशनल कर्व, 3 डायमेंशनल सॉलिड। सॉलिड, जैसे ही अब सॉलिड बोलते हैं तो हमें पता है कि उसके अंदर, सॉलिड का मतलब क्या होता है? जो ठोस होता है, जिसके अंदर हम चीजें भर सकते हैं। जब चीजें भर सकते हैं तभी तो वॉल्यूम की बात कर सकते हैं, ठीक है ना? तो इसलिए मैं बार बार ये चीज बोलती हूँ, 2 डायमेंशनल क्या है? कर्व। वो सिर्फ हमने एक पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं, वो उस पेपर का कुछ एरिया कवर कर सकता है, दैट्स इट, राइट? बट 3 डायमेंशनल सॉलिड होता है, उसके अंदर हम सामान भर सकते हैं, राइट? हमारे टाइम पे एक आइसक्रीम मिला करती थी बॉल की शेप में, फुटबॉल बनी होती थी, उसके अंदर आइसक्रीम होता था। सो दैट इज अ सॉलिड बिकॉज आई कैन फिल इट विथ समथिंग, राइट? सिमिलरली हियर ऑल्सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि अगर तुम किसी एक तो 3 डायमेंशनल सॉलिड्स हमने अपने आप किए, स्फीयर अगेन एक सिमेट्रिकल सॉलिड है, एक स्टैंडर्ड सॉलिड है जिसको हम पहले पढ़ चुके हैं। बट अगर मैं इस चीज को इमेजिन करूं, ये जो मैंने कर्व ड्रॉ किया, ओनली दिस, इफ यू वांट, इमेजिन करो अब तुमने इसको, जैसे ये सिर्फ इस पोर्शन को, ये यहां से लेके यहां तक ही तो मेरा कर्व है, ठीक है? अब तुमने इसको एक्स के अराउंड घुमा दिया, ठीक है, रोटेट किया इसको, तो क्या जनरेट होगा? कुछ कुछ बनेगा? यस सर। क्या? बेल शेप में। कैसा कैसा? फिर से बोलो। बेल मैम, बेल। हाँ जी, क्या कैसा बनेगा? somebody said bell. यस मैम। और कोई सोच सकता है कि क्या बनेगा? इसको इमेजिन करो, एक तुम्हारे पास इस तरह से तुमने रोप में एक इस तरह से बना दिया, या एक वायर है तुम्हारे पास, ठीक है? उसके बाद तुमने उसको उठा के एक्स एक्सिस पे घुमा दिया और वापस वहीं ले आए, जिस पोजीशन से शुरू किया था वापस वहीं लाके उसको खड़ा कर दिया। तो क्या बनेगा? और फॉरगेट अबाउट इट, चलो ये तो एक तुम्हारे पास रजिस्टर का पेपर है, एक पेज, ठीक है? वो क्या है? शेप क्या है उसकी? रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगल। ठीक है। अब उस पेज को तुमने नीचे रखा हुआ है, नीचे रखा हुआ है ना, ठीक है? सो दैट मीन्स समवेयर एक्स एक्सिस उसमें से पास कर रही है, उस पेज के सेंटर में से या कहीं से भी पास कर रही है, उसके एंड पे कुछ कुछ भी इमेजिन कर लो। अब उस पेपर को रोल करो इस तरह से, मैम वो सिलेंडर बन जाएगी, सिलेंडर का फॉर्म दिखता है। सिलेंडर बन गया ना जब तुमने एक पेपर को यस रोल मैम। किया, तो ऐसे ही यस होता मैम, है ना, इस केस में भी वही हो रहा है मैम। ठीक है ना? अगर जैसे ये मेरे पास रेक्टेंगल है, ठीक है? इसको जब मैं रोल करना शुरू करूंगी तो वो इस तरह का दिखेगा, यस ठीक है? मैम, विच इज यस मैम, एक्चुअली यस नथिंग मैम, बट अ सिलेंडर। तो सिलेंडर। इसका मतलब मैंने क्या किया एक्चुअली, मैंने अपने रेक्टेंगल को एक्स एक्सिस के अराउंड रोटेट कर दिया, तभी तो उसको पूरा घुमाया ना, ऊपर से लेके नीचे तक। यस मैम। यहाँ से हमने शुरू किया था, वहीं पे लाके खत्म किया, तो हमारे पास एक सिलेंडर जनरेट हो गया, ठीक है? सो कहने का मतलब ये है कि वी नॉट जस्ट सॉलिड्स एज इट इज, what we can do is we can talk of solids by revolving curves around the axis. अब जैसे इस केस में she was absolutely right. Imagine करो अब कि तुम्हारे पास कैसा बनेगा solid. यस मैम, इट इज लाइक अ बेल। It is like a bell because तुम्हारे पास ये इधर से, sorry मैं फिर से बनाती हूँ, you'll have something like ये इधर आएगा, ठीक है? ऐसे ही इधर भी होगा,
जो नीचे आएगा, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। और क्योंकि यहाँ पे गैप था, इधर ऐसा होगा एंड समथिंग लाइक दिस, ये बन जाएगा ना। और तुम्हारा एक्स एक्सिस कहाँ है, ये रहा, यहां से हमारा एक्स एक्सिस था, ये हमारा वाई एक्सिस था। इस तरह का सॉलिड बन जाएगा। ये कर्व क्या है तुम्हारा, y इक्वल टू एफ एक्स, राइट। अब इमेजिन करो, इसको तुमने अराउंड y एक्सिस घुमा दिया, ये तो हमने x एक्सिस घुमाया था तो ऐसा बना। जब अराउंड y एक्सिस घुमाओगे तो क्या बनेगा, सेम शेप होगी, सेम सॉलिड होगा, डिफरेंट होगा मैम। डिफरेंट नो मैम, होगा, डिफरेंट होगा। डिफरेंट बन जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम, सो इट विल बी समथिंग लाइक, यही बनाना है, क्योंकि अब क्या होगा कि ये इधर ऐसे था, ठीक है, ऐसे ही इधर भी ऐसे ही बनेगा, समथिंग लाइक दिस, इस तरह से, है ना। और यहाँ पे और इधर से समथिंग, सम सॉलिड लाइक दिस, कुछ इस तरह का ही बनेगा ना, बहुत Yes रफ ma'am, it is half Yes, hemisphere. ma'am. So it will be a different solid, right? So what I want to convey here is that we can talk of solids as we have studied so far, but we can also talk of solids by revolving curves around x-axis, around y-axis. अब इमेजिन करो, ये भी तो एक लाइन है, चलो ये नहीं करती, कोई से ये नहीं लेते, I take this line. This is some line. Say let's take this line. Say y equal to x. अब इस कर्व को मैं इस लाइन के अराउंड भी तो रिवॉल्व कर सकती हूँ, ठीक है ना। So what I mean to say is that we can get solids by revolving curves around either the coordinate axis or any line, right? So such solids are called as solids of revolution. Okay, so that means whatever curves or whatever graphs we have studied so far, they can generate solids. हमको उनको रिवॉल्व भी तो करना है, राइट, और रोटेट ही तो करना है अराउंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। जैसा एक्स एक्सिस पे बनेगा वैसा ही वाई पे बनेगा ना नहीं, जरूरी नहीं है मैम, क्योंकि एफ एक्स तो हमारा सेम ही रहेगा, अगर हम उसकी थिकनेस बढ़ाएंगे तब चेंज होगा। नहीं, सॉलिड तो चेंज हो गया। अच्छा चलो, ये लो, तुम अपना सिंपल पैराबोला लेते हैं, एक मिनट, ये लो, ये है, ठीक है, दिस इज वन पार्ट ऑफ अ पैराबोला। Yes, ma'am. ठीक है ना। अब इसी पैराबोला को अराउंड एक्स एक्सिस रोटेट करो, अराउंड वाई एक्सिस रोटेट करो, सेम सॉलिड आएगा। No ma'am. नो मैम। मैम। अराउंड वाई एक्सिस तो बड़ा अच्छा सा हेमीस्फीयर आ जाएगा, ओके मैम, गॉट इट। इसी तरह का बन जाएगा ना अराउंड वाई एक्सिस तो, बट अराउंड एक्स Yes, एक्सिस ma'am. तो Yes, ma'am. तरह का बनेगा। It is something like a cap. हाँ, या कैप, और जो बिगुल होता है, ब्लो हॉर्न, या so it will resemble like that. So I mean you get different solids when you rotate them around different axes. Okay, so but Yes. but one thing is for sure, that we are going to get solids. So now what the objective now which we are going to study in this chapter is to find the volumes. See, ho kya raha tha, why this is needed is because as far as, अब जैसे चलो ऊपर वाले बेल पे ही आ जाओ, हमारा वो बना हुआ है, अगर मुझे अब अगर इसका वॉल्यूम निकालना है, ठीक है, तो अगर मैं इसको स्लाइस करना शुरू करूं, ठीक है, इन पोर्शंस में, राइट, तो अब हो क्या रहा है कि अगर ये मेरा एक स्लाइस बनेगा, ये मेरा एक स्लाइस बनेगा, समथिंग, बट द प्रॉब्लम इज कि हर स्टेज पे स्लाइस का शेप चेंज हो जाएगा अगर मैं पुराने वाले मेथड से चलती हूँ तो। Yes, ma'am.
Yes, ma'am. Its size getting changed. हाँ, the shape of the slice is getting changed. It is not, अब ये आइसक्रीम स्लैब नहीं है, आइसक्रीम ब्रिक नहीं है हमारे पास कि हर स्टेज पे हमारा यूनिफॉर्म रहेगा, right? So that means to find volumes of such solids that have been generated by rotating the curves around the coordinate axis, वॉल्यूम तो निकालना है, मुझे इसका भी वॉल्यूम निकालना है, ठीक है, और मुझे इस ब्लोहॉर्न का भी वॉल्यूम निकालना है सपोजिंग. तो दैट मीन्स वी नीड सम अदर मेथड्स टू फाइंड द वॉल्यूम्स. लॉजिक स्लाइसिंग का ही यूज करेंगे, ठीक है, बट सॉलिड हमारे पास कहां से आएगा? एक 2-dimensional कर्व को रोटेट करके. इज इट ओके? अब आई एम, बिकॉज इट्स टाइम, और मेरी भी दूसरी क्लास है, अदरवाइज आई वुड हैव कंटिन्यूड. थर्ड ईयर्स के साथ क्लास है मेरी, तो इसलिए आई एम स्टॉपिंग इट राइट नाउ.